Hello, Mr. Ravi Kumar. Yes, sir. Ravi Kumar, I am Jitendra Tyagi from YourPD Education, and Yes, we are going to conduct your SNAP interview on digital electronics, right? yes, sir. So, before starting of the interview, can you just give a brief introduction to yourself? Yes, sir. Sir, good evening, sir. My name is Ravi Kumar. I have done my schooling from my hometown, and I completed my graduation in a Bachelor of Technology in Electronic Communication Engineering from Malot Institute of Management and Information Technology. Uh, there, there I've attended a 6 month industry training in PLC industrial automation. There I was completed my project PLC based automatic bottle filling system. I Okay, belong to a nuclear family. My family occupation is farming, and my father is farmer, and my mother is housewife. Apart from my parents, I have one elder brother. That's all about me. Thank you. okay. So, Ravi, you have studied digital electronics as your subject. Have you Yes, sir. done any project related to digital electronics? Sir, no, sir. Okay. And in your industry, whenever you go for industrial training for 6 months, did Yes, you sir. anywhere found any application of digital electronics which you studied during your BTech? Yes, sir. There use of मतलब लॉजिक गेट्स का यूज जो लेटर प्रोग्रामिंग जब हम करते सर वहाँ पे जो लॉजिक्स बनते थे वो मतलब गेटवे लॉजिक्स बनते थे उसमें यूज Hmm. होते थे जैसे Okay, एक्सोर मतलब एक्सोर गेट हो गया एंड गेट होगा उनका यूज था सर okay. So first of all, Ravi, you tell me what are universal gates? देर आर टू यूनिवर्सल गेट्स नैन गेट और नॉर गेट सर Okay, and why we call them as universal gate? because of their property sir because of their property no we can generate any circuit from that sir we can made any circuit reliable Any up to circuit, logic circuit, or any other electronic or mechanical circuit? sir electronic circuit sir. Okay, any electronic circuit. Yes, sir. Okay. So how can you design a logic circuit using NAND gate? Can you explain me? Suppose I give you one AND gate. Okay. Yes, I yes, sir. ask you to design an AND gate using NAND gate. So how will you design it? we uh, we cascade those two NAND gates Okay. we cascade two NAND gates to आउटपुट लेने के साथ दो एंड गेट को हम जोड़ सकते हैं सर मतलब कैस्केड पोजीशन के अंदर तो मैं एंड गेट आउटपुट आ जाएगा वहाँ पे सर Okay. And what is XOR gate? तो सर एक्सोर गेट होता है कि सर जब नॉन इक्वलेंट इनपुट होते हैं तो हमें आउटपुट मिलती है सर Non-equivalent input पे? मतलब हाई आउटपुट मिलती है सर एंड जब इक्वलेंट इनपुट होती है तो हमें लो आउटपुट मिलती है सर Okay. So can you design XOR gate using NAND gates only? यस सर Okay. So you draw the circuit and you show it to me. यस सर यस Okay. And this your A XOR B. Can you tell me यस what सर is the expression? Can you express this expression A XOR B using basic operations like AND or NOT?
I don't get your answer. You have represented the final output as A XOR B. Okay. Yes, sir. You have Yes, sir. used one symbol. Yes, I sir. do not want to use this symbol. Okay. I Okay. want to use basic operations of logic circuits like addition, multiplication, or NOT operation. Okay. Then how can you Okay. express it? How will you express it? Sir, A bar B plus A B bar, sir. Okay. We are using two NOT gates and two AND gates and one OR gate, sir, to represent this. Okay. Okay. Now you tell me, Ravi, Yes, sir. what is the difference between signed binary representation and unsigned binary representation? Sir, in sign binary representation, sir, we can put an extra MSB bit to represent the sign of the number, sir. Okay. But in unsigned number, we are not put that. Automatically, unsigned number we are always represented with positive number of. मीन्स निगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अनसाइन में. सर वहाँ पे मतलब वहाँ पे नेगेटिव नंबर होता नहीं सर, उनके साइन तो मतलब वो मैटर नहीं करता सर. नहीं, अगर कोई निगेटिव नंबर है और उसको मैं सर अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन से लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं लिख यस सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर. नो सर. ओके. एंड अगर हम साइन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यस सर. ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम यूज करते हैं फॉर साइन रिप्रेजेंटेशन? सर हम साइन नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से यूज कर सकते हैं सर, और वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सर. ओनली टू मेथड्स, इज एनी अदर मेथड आल्सो? Sir, I'm studying only. I know about two methods, sir. Others I don't know Okay. about that. So which one of these two methods is preferred? Two's complement or one's complement? Which is most frequently used? Sir, two's complement, sir. Okay. Can you give me the reason why we use two's complement as compared to one's complement? Means what is the advantage of using two's complement? Sir, when we addition through one's complement, then one कई बार सर एक्स्ट्रा कैरी आ जाती है तो उसको हमें वंस में दोबारा उसको ऐड करना पड़ता है. बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट वन एडिंग टू साइन नंबर देयर इज वी डिस्कार्ड द कैरी देयर इन टूज कॉम्प्लीमेंट सर. मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी, मतलब टूज में कैरी आता है कि नहीं आता है? सर आता है लेकिन उसको डिस्कार्ड करते हैं सर. अच्छा, वंस में नहीं उसको कर ऐड सकते? नहीं सर, उसमें ऐड करना पड़ता है सर एलएसबी में. अच्छा. ओके. एनी अदर एडवांटेज? एनी अदर? वंस कॉम्प्लीमेंट सर टू जीरो आती है सर उसमें, एक पॉजिटिव जीरो एक नेगेटिव जीरो सर. बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट वी हैव ओनली 1 0 सर. मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट में ओनली 1 0 होता है या जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट में ओनली 1 रिप्रेजेंटेशन होता है? कौन सा सेंटेंस सही रहेगा? सर वंस रिप्रेजेंट होता है सर जीरो. इन टूज कॉम्प्लीमेंट भी इन वंस कॉम्प्लीमेंट में सर जीरो दो बार रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमें सर, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में एक बार ही रिप्रेजेंटेशन होती है सर. ओके. नाउ यू टेल मी व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एन आईसी? Sir, figure of merit is a product of proportion delay into power distribution of the IC, sir. Okay. And what is the unit of figure of merit? In picojoule, sir. पिकोजूल. ओके. अच्छा, ये जूल जो है, जूल ये फोर्स का यूनिट होता है या वर्क का यूनिट होता है? वर्क का होता है सर. ओके. अच्छा, फिगर ऑफ मेरिट लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? सर लो होना चाहिए सर. लो होना चाहिए. ठीक है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज ट्राई स्टेट लॉजिक? सर इन ट्राई स्टेट लॉजिक there in tri-state logic
The circuit work in three states, sir. 0, 1 और एक high impedance state, sir. ओके, तो इसका यूज कहाँ पे आपने देखा है? ट्राई स्टेट का कहीं पे कोई यूज किया है? Sir, presently I don't remember this, sir. ओके, एंड नाउ यू टेल मी, आप के मैप के बारे में तो जानते ही होंगे, Yes, sir. ठीक है, और ट्रुथ टेबल के बारे में भी जानते होंगे। Yes, sir. Okay, now you tell me what do you mean by don't care outputs in a K-map or don't care outputs in a truth table? Sir, actually don't care is represent simultaneously 0 or 1, sir. There is no such as ambiguity between 0 or 1 that represents the don't care, sir. Where where we represent by the don't care in K-map or in truth table, sir. Okay. Now you tell me what is decoder. Sir, Hmm? in K-map, sir, we use don't care for minimization of a circuit. There, sometime we use for minimization of लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के सर डोंट करेगा कई बार यूज होता है मैक्सिमम पर कई बार हम यूज नहीं कर पाते सर उसका। ओके, और ट्रूथ टेबल में तो हम डायरेक्ट जहाँ एम्बिग्यूटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने की 0 और 1 की वहाँ पे हम उसको डोंट केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई डेफिनेशन क्या होना चाहिए डोंट केयर को, कैसे डिफाइन करोगे? आपने जो बताया है ठीक है, फाइन हो, बट अगर आपको कहा जाए कि डोंट केयर इज राइट द रिप्रेजेंटेड डेफिनेशन ऑफ डोंट केयर आउटपुट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डोंट केयर आउटपुट? सर डोंट केयर इज मिनिमाइजेशन में यूज रिप्रेजेंटेड। करना उनका एक एप्लीकेशन है। यस सर, डोंट केयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्बिग्यूटी ऑफ 0 और 1 सर। ओके, 0 और 1 में मतलब ये किस तरीके की एम्बिग्यूटी आती है, मतलब ये? सर साइमल्टेनियसली चेंजेस आती है सर, वहाँ पे हमें श्योर नहीं होता कि जो 0 है और 1 है सर। ओके, अच्छा ये बताइए डिकोडर क्या होता है? सर डिकोडर सर अपोजिट ऑफ एनकोडर होता है सर। देयर आर कन्वर्ट बाइनरी लगे जो डिफरेंट मतलब एनकोडर, डेसिमल में। आई डोंट नो अबाउट एनकोडर, यू जस्ट टेल मी अबाउट डिकोडर। ओके सर, सर डिकोडर चेंजेस द इनपुट टू बाइनरी इनपुट टू एनी अदर बाइनरी इनपुट एंड डेसिमल नंबर सर। बाइनरी इनपुट को एनी अदर बाइनरी इनपुट में कन्वर्ट करता है, ऑक्टल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सर। मतलब ये डेफिनेशन है। अच्छा, आपने सुना है डिकोडर विद एक्टिव हाई आउटपुट या डिकोडर विद एक्टिव लो आउटपुट? यस सर। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? डिकोडर विद एक्टिव हाई आउटपुट और कई बार आपने सुना होगा डिकोडर विद एक्टिव लो आउटपुट, मीनिंग क्या है? Sir, I don't remember this, sir. Okay. Now you tell me, what do you mean by asynchronous inputs in flip-flop ICs? Asynchronous inputs in flip-flop ICs. फ्लिप-फ्लॉप की जो आईसी मिलती है मार्केट में, उसमें कुछ एसिंक्रोनस इनपुट्स होती हैं, ठीक है? तो उनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर एसिंक्रोनस इनपुट्स सर हम एक मतलब एक ही फ्लिप फ्लॉप को सब इनपुट देते हैं और जो अलग उसके बाद कैस्केडिंग में जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो उनको मतलब उस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से उसकी क्लॉक को अटैच किया जाता है आगे से। ओके, तो ये एसिंक्रोनस इनपुट होगी। मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपको? फ्लिप फ्लॉप की आईसी होती है, उसमें एसिंक्रोनस इनपुट्स का क्या मीनिंग है? उसमें हम कुछ एसिंक्रोनस इनपुट्स यूज करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोस इनपुट्स? सर
नहीं है सर। Okay, okay, no problem. Now you tell me, suppose we have a JK flip-flop, okay? यस सर। यस In JK flip-flop, the state of the flip-flop changes from 0 to 1. यस सर। So what are the possible input combinations at J and K inputs? J0 सर और K1 J0, K1. और यस सर। स्टेट 0 से 1 में चेंज कर रहे हैं हम, पता है ना? किसी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट 0 से 1 में चेंज हो रही है, सो उसकी इनपुट पे, जे एंड के इनपुट पे क्या क्या पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अप्लाइड, वो बताने हैं आपको। आपने बताया J0, सर K1 और 1 1 सर। J1 और K1 सर, टू इनपुट आर पॉसिबल सर। ओके, लेट मी नोट डाउन। J इक्वल टू आपने बताया 0, K इक्वल टू 1 और यस सर। J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, राइट? यस सर। Okay, now you tell me, how can we convert JK flip flop into SR flip flop? Suppose we are in a lab and यस सर। we have a JK flip flop there, okay? ओके सर। But we want to use that JK flip flop like an SR flip flop. यस सर। So how can we do it? Firstly we write SR flip flops characteristic table characteristic level SR सिस्टम की characteristic टेबल लिखेंगे सर। उसके बाद उसको हम जेके की characteristic टेबल के साथ रिलेट करके सर बना सकते हैं। अच्छा, तो आप बना के दिखा सकते हैं मुझे डायग्राम? यस सर। बनाइए। ओके, जो भी आपने अभी तक किया है एक बार वही शो कर दीजिए मुझे, उसी से आई कैन गेट आइडिया। You are writing PSNS of SR. This is application table of SR first, okay? यस सर। And okay, leave that. Now you tell me, what is resolution of a D to A converter? रेजिस्टर एज मतलब कि जब हम डिजिटल की 1 बिट में चेंजेस आता है तो हाउ मच चेंजेस इन द आउटपुट देर आर एक बिट चेंजेस करने का आउटपुट में कितना चेंज आता है सर, उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। ओके, और वो बिट हम क्या वो किसी डिजिटल इनपुट कोड पे डिपेंड करता है या उससे इंडिपेंडेंट होता है? मतलब कि अगर मेरे पास 4 बिट का एक डैक है, ठीक है, यस सर। तो 4 बिट का कोई भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने अप्लाई किया, सपोज मैं 1100 अप्लाई करता हूँ, यस सर। और फिर मैं उसको 1100 से 1101 कर देता हूँ, सर उस पर नहीं डिपेंड करता सर। उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, आप सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में जानते हैं? यस सर। तो क्या आप सैंपल एंड होल्ड सर्किट का बेसिक डायग्राम बना के शो कर सकते हैं मुझे अभी? यस सर। बनाइए। ये एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट आपने बनाया है। यस सर। इसमें स्टार्टिंग में जो आपने ये क्या ओप एम्प लगाया है कोई? यस सर। इसका क्या पर्पज है? सर इसका
This I don't remember this, sir. ओके ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे रवि। Yes. आपने Yes, sir. बहुत सारे डिजिटल में अलग अलग सर्किट पढ़े होंगे, ठीक है? तो एक Yes, होता sir. है FPGA, सुना है? FPGA. Yes, sir. आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे बस। Sir, Field Programmable Gate Array, sir. ठीक है, राइट। ओके, सो रवि आपका इंटरव्यू अभी ओवर है, ठीक है? मैं Okay, आपको एक sir. बार फीडबैक प्रोवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे, तो उसके लिए योर पीडिया पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो इंटरव्यू Yes, के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना? उनको Yes. अच्छे तरीके से देख के उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। थोड़ा सीक्वेंसिंग बनाएंगे, क्या क्या बताना है, कैसे कैसे। क्लियर? सर सर मैं कनेक्ट कर विजेंद्र सर से मतलब बात किया था सर, थोड़ा उनसे चल रहा था, तो उसमें हाँ कुछ पॉइंट को अरेंज कर रहा था सर, हाँ, तो अभी थोड़ा उस पर काम कर रहा था सर। बिल्कुल उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कहीं भी जाओगे आप। तो पहला ही सर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो इस सेशन के बाद आप मतलब सर डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम आते हैं अपने टेक्निकल पोर्शन पे, तो आपने जैसे लॉजिक गेट्स के बारे में आपको आइडिया है बेसिक, दैट इज गुड। यस लेकिन आपने टूज कॉम्प्लीमेंट वाला जो पॉइंट्स पहला था मेरा, उसमें कुछ आपको चीजें क्लियर हैं और कुछ अनक्लियर हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई साइंड रिप्रेजेंटेशन और अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है? तो आपने बताया कि नेगेटिव नंबर्स को अनसाइंड में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? यस सर तो देखो, नेगेटिव को भी कर सकते हैं अनसाइंड में। अनसाइंड का मतलब क्या होता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए कोई स्पेशल डिजिट यूज नहीं करते, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा बिट यूज नहीं करेंगे हम, बस सिंपली नंबर पॉजिटिव है तो उसके बाहर प्लस का साइन लगा देंगे, और अगर नंबर नेगेटिव है तो माइनस का साइन पुट कर देंगे। मतलब साइन यूज होता है प्लस या माइनस, वहां पे डिजिट यूज नहीं होती, उसको हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इन अनसाइंड मेथड। और साइन में क्या होता है कि नंबर थोड़ा प्लस है और माइनस है, उसके लिए बिट यूज कर लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद थोड़ा आया था सर उस टाइम, दिमाग में आया था, पर वो सर फ्लो में फिर हाँ, चलो कोई बात बोल लेता हूँ। नहीं। फिगर ऑफ मेरिट का डेफिनेशन आपका ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं तो आगे ध्यान रखना है, ठीक है? फिगर ऑफ मेरिट लो होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। ट्राई स्टेट लॉजिक का भी ठीक है। अब आप ये चेक करना है आपको कि ट्राई स्टेट के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे टोटेम पोल आउटपुट में हम यूज करते हैं, कई जगह यूज करते हैं ना ट्राई यस स्टेट। सर तो अगर वो सर होता है, आपको एक्चुअली मैं पता वहीं है, पे पढ़ा था मैंने। हाँ, तो उसको देखना कि आपने कहीं वहां पे तो कोई इसका यूज नहीं किया अपनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग में। ट्राई स्टेट कहीं आपको मिला, उसका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है? दूसरा, जो डोंट केयर आउटपुट है ना, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, बट आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? देखो, जब भी हम कोई सर्किट डिजाइन करते हैं तो सर्किट यस सर का डिजाइन होता है किसी पर्पज के लिए, ठीक है ना, कि उसका एक फंक्शन है कुछ। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टिकुलर कोड, कोई पार्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करने पे ना अनवांटेड रिजल्ट आता है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस इनपुट कॉम्बिनेशन को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये इनपुट कॉम्बिनेशन हम सर्किट में कभी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? ये हम मान लेते हैं। तो जिस इनपुट कॉम्बिनेशन को कभी अप्लाई ही नहीं किए करेंगे हम, तो उसमें जब हम ट्रुथ टेबल में उसकी वैल्यूज एंट्री करते हैं, तो हम ये मान जानते हैं, पहले हम मान अपने मन में कि ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो जो इनपुट कॉम्बिनेशन कभी आएंगे नहीं, ठीक है ना, तो उनकी आउटपुट कुछ भी ले सकते हैं हम, चाहे उसको 1 लिख दें चाहे 0 लिख दें, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रुथ टेबल कंप्लीट करते हैं तो आउटपुट को 1 या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी इनपुट कॉम्बिनेशन which never occur during the operation of a digital circuit are represented by D, don't care, ठीक है? ये आउटपुट में हम बोलते हैं कि कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वो आना तो है नहीं कभी। पॉइंट क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद डिकोडर जो है उसका डेफिनेशन आपको नहीं पता है, तो जितने भी बेसिक कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर है, एटलीस्ट उनको डिफाइन तो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? तो डिकोडर का मतलब क्या है? डिकोड, डिकोडर एक सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट, कि जिसके अंदर हम कोई भी कोड अप्लाई करते हैं एक्चुअली, ठीक है?
इनपुट कोड, sir. बाइनरी कोड हो सकता है, वो बीसीडी कोड, कोई भी कोड है, उस कोड को डिटेक्ट करेगा सर्किट, और डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट पे उस कोड से रिलेटेड कुछ आउटपुट्स होती हैं। हर एक कोड का अपना एक पार्टिकुलर आउटपुट हम बना के रखते हैं आउटपुट लेवल्स पे, और अपनी आउटपुट को करस्पॉन्डिंग आउटपुट लेवल पे एक स्पेसिफिक सिग्नल आता है, या तो वो सिग्नल हाई हो सकता है या सिग्नल लो हो सकता है। तो सिग्नल से हमें आइडिया लगता है कि भाई अगर ये सिग्नल यहाँ पे हाई है तो करस्पॉन्डिंग कोड आया होगा इनपुट पे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो किसी भी कोड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है डिकोडर, और डिटेक्ट करने के बाद उसको इंडिकेट करता है आउटपुट पे, भाई स्पेसिफिक आउटपुट लेवल, वो लेवल लो हो सकता है या हाई हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैंने क्या पूछा था कि आप ये बताइए कि एक्टिव हाई आउटपुट और एक्टिव लो आउटपुट वाले डिकोडर में क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, तो अगर कोई डिकोडर किसी पार्टिकुलर आउटपुट को इंडिकेट करना चाहता है कि भाई ये कोड आया है, उसकी आउटपुट को इंडिकेट करता है, तो इंडिकेट अगर वो हाई करके करता है, हाई लेवल से, तो ऐसे डिकोडर को बोलेंगे डिकोडर विद एक्टिव हाई आउटपुट लेवल। ये जनरली एंड गेट से बनते हैं, आउटपुट पे एंड गेट लगाते हैं। और अगर कोई डिकोडर ऐसा है कि जो कोड्स की जो पहचान है, मतलब उनको डिटेक्ट करने के बाद जो इंडिकेशन देता है वो लो सिग्नल से देता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, डिकोडर विद लो आउटपुट। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एसिंक्रोनस इनपुट, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था फ्लिप फ्लॉप आईसी में। तो देखो कोई भी फ्लिप फ्लॉप की आईसी हम लेके आते हैं मार्केट में अगर परचेज करके, उसमें दो एसिंक्रोनस इनपुट्स के सिग्नल भी होते हैं, एक का नाम होता है प्रीसेट, एक का नाम होता है क्लियर। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप की अपनी इनपुट्स होती हैं एसआर, जेके, डीटी, उनको सिंक्रोनस बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो डोमिनेंट होती हैं एक तरीके से, कि अगर हम प्रीसेट को एक्टिवेट कर दें तो ये फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 1 कर देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस एट द इनपुट एंड क्लॉक। ठीक है, तो ये दो इनपुट आपको पता होनी चाहिए, प्रीसेट और क्लियर, जो इमीडिएटली प्रीसेट मतलब सेट कर सकती हैं फ्लिप फ्लॉप को, या इमीडिएटली क्लियर कर सकती हैं। और काउंटर में तो स्पेशली हम जब कोई ऐसा काउंटर डिजाइन करते हैं जो फुल मोडलेस नहीं होता, शॉर्टेंड मोडलेस होता है, वहां पे तो मेनली इनका यूज होता है एसिंक्रोनस इनपुट के बिना काउंटर डिजाइन ही नहीं कर सकते, फिर उस केस में हम वैसे। क्लियर। सर एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि सर क्लियर और प्रीसेट को एसिन और इनपुट बोलते हैं, एसिंक्रोनस बोलते हैं। ये सर, क्योंकि वैसे मुझे क्लियर और रीसेट के बारे में तो पता था सर मुझे। ओके ओके, कोई बात। रीसेट के बारे में। और नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा जे के फ्लिप फ्लॉप में स्टेट 0 से 1 में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो जे के पे क्या हो सकता है। तो जे को 0 से 1 करने का मतलब है फ्लिप फ्लॉप को सेट कर रहे हैं। यस सर। सेट कब होगा, फिर 0 से 1 मतलब टॉगलिंग हो रही है, एक तो जो 1 पे होती है, तो एक तो सही आंसर है आपका। और दूसरा जब जे को 1 करेंगे और के को 0 रखेंगे तो सेट इनपुट एक्टिवेट होगी ना, तभी तो वो सेट होगा। आपने के को 1 करा और जे को 0 रखा, तब तो रीसेट ही रहेगा वो। सर लिटिल बिट कंफ्यूज होगा, मुझे पूरा टू टेबल लिख लेता तो थोड़ा क्लियर हो जाता इसका। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ कैन वी कन्वर्ट जे के फ्लिप फ्लॉप इनटू एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो अगर आपको दोनों की फंक्शनिंग पता है, आपके पास जे के है और आपको एसआर डिजाइन करना है, मतलब उसको एसआर की तरह यूज करना है, तो एसआर में और जेके में डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है 1-1 पे। एसआर में 1-1 अप्लाई नहीं कर सकते, जेके में कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो एसआर बनाना, तो 0-0, 0-1 और 1-0 पे तो दोनों सेम काम करते हैं ना, तो आप सिर्फ ये कहो कि भाई हमें 1-1 यूज नहीं करना। अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास और हम वहां पे जो भी उसको यूज कर रहे हैं उसको ये बोल दें कि डोंट अप्लाई 1-1, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एसआर की तरह ही काम करेगा। एसआर की तरह तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 1-1 अप्लाई मत करो तो कन्वर्ट हो गया वो एसआर में। क्लियर। लॉजिकल आउटपुट, लॉजिकल आंसर देना था सर इसका। सिंपल यही आंसर है भाई, जेके से एसआर होता है, एसआर का मतलब क्या है, वो मैं दोनों सेम ही होते हैं, केवल 1-1 पे डिफरेंस आता है। क्लियर है मेरा पॉइंट। मैं वो प्रोसेस को डिफाइन करने लगा ये सर। हाँ, वो अगर कोई और होता ना तो ठीक था, आपको मतलब कन्वर्जन आना चाहिए कि भाई बी से जेके बनाना है, तो आपका प्रोसीजर ठीक है, आपको पता है, बट यहाँ पे तो मतलब कि सिंपल है। अच्छा, उसके बाद रिजोल्यूशन को आपने बताया डेफिनेशन, वो ठीक है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट आपने बताया, और स्टार्टिंग में जो गेट लगाते हैं वो लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, वो बफर का काम करता है ना इनपुट, जो पहला वाला होता है हमारा,
वो सिंपली क्या है, बफर का काम करेगा एक, ठीक है। और फुल फॉर्म ऑफ FPGA, ये भी आपका करेक्ट है। तो ओवरऑल ठीक है आपकी परफॉर्मेंस, आगे इसको और इम्प्रूव करिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके। ठीक है, और स्नैप्स जितने भी आप लगा सकते हैं लगाइए, इससे रियली आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके।